Okay, continuing with the recap of the chapter haloalkenes and haloarenes, we will quickly do the properties, revision of the properties. Now chemical properties we will do, physical properties we don't require it much, you can study that also. So nucleophilic substitution, quickly I will revise about SN1 and SN2. Now first let us understand what is a nucleophilic substitution. मतलब अगर मेरे पास कोई chloromethyl is there, okay, chloromethane is there, I react with aqueous KOH, I get an alcohol and KCl. A simple nucleophilic substitution. What I am doing, I am replacing Cl with OH. Okay, now this nucleophilic substitution goes by SN1 and SN2. So quickly I will revise what is SN1 and what is SN2. Now in case of this reaction, if I draw the wedge structure of this, okay, I draw this wedge structure, this is CH3Cl. Now in case of SN1, first step, it forms a carbocation. जो भी आप एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन लेते हो वो पहले क्या बन जाता है, it forms a carbocation. So please याद रखें, SN1 is a reaction which depends upon only one substance, one reactant, that is it depends upon only the chloromethane. जो alkyl halide है, it only depends upon, so that's why it is called first molecular. I will not write all this detail, it is all done. Just for you for a recap, one मतलब ये depend करता है सिर्फ alkyl halide पे, ये KOH पे depend नहीं करता है, ठीक है. So क्यों नहीं करता है, क्योंकि इसका जो rate determining step है, now you have learned chemical kinetics, now you know the rate determining step is a very important step. It is a slow step, so it decides the rate of the reaction. So first step क्या होता है SN1 में, बाबा याद रखें कि कार्बोकैटायन बनता है. After the carbocation is formed, now I will just write it, I am not going to draw the structure again like that, with structure and this. Now what happens, अब हो गया OH minus. This OH minus will attack either from the front side or from the back side. Why I am stressing on that, because I will do the stereochemistry of it also. Yeah, ठीक है. So मतलब if I start with D stereochemistry, D isomer, dextrorotatory, okay, so I will be landing up getting, यानी मतलब जो ये जो OH minus है ना, ये जो OH minus है, कार्बोकैटायन बनने के बाद यहाँ से भी अटैक कर सकता है फ्रंट साइड, एंड इट कैन अटैक फ्रॉम द बैक साइड. सो अगर ये फ्रंट साइड से अटैक करेगा तो आपको OH वहीं मिलेगा जहाँ से Cl गया था, ठीक है ना, जहाँ से Cl गया था वहीं से मिलेगा. यानी अगर आप D से स्टार्ट करते हो तो आपको D मिलेगा. आपको दूसरा भी इक्वल प्रोपोर्शन में मिल सकता है. यू कैन ऑल्सो गेट OH फ्रॉम द opposite side, क्योंकि कार्बोकैटायन बन गया, so it can attack from the front side as well as it can attack from the back side. So you can get D also and you can get L also. यानी कि अगर आप D से start करोगे तो there is a chance of getting both D and L in equal proportion. This is talking about the stereochemistry part of it. That means it undergoes racemization. We say it undergoes a racemization. Why? Because there is an equal mixture of D and L. Now what is D and L? These are isomers, enantiomers, which have got only a difference in their optical rotation. मतलब if there is an optically active substance, अब ये optically active substance क्या है, इसी में बात कर लेंगे फट से. ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस वो सब्सटेंस होता है, वो कार्बन होता है जो कायरल होता है, जो एसिमेट्रिक होता है, ठीक है, सिमेट्री नहीं है. क्यों? इफ अ कार्बन एटम हैज गॉट ऑल द 4 ग्रुप डिफरेंट, मतलब अगर मैंने H लगाया, Cl लगाया, OH लगाया एंड एक CH3 ग्रुप लगाया, तो ये वाला जो कार्बन एटम है इसको मैं बोलूंगी दिस इज कायरल, इसको मैं बोलूंगी दिस इज एसिमेट्रिक, और मैं बोलूंगी ये ऑप्टिकली एक्टिव है. यानी कि व्हेन अ लाइट पासेस थ्रू इट, okay,
when the light passes, plane polarized light passes through an optically active substance, then it can rotate the plane polarized light in right hand side or left hand side. If it is right hand side it is D, if it is left hand side it is L. यानी कि जो D और L आइसोमर है ना उसमें कोई फर्क नहीं है, फिजिकल प्रॉपर्टीज में कोई फर्क नहीं है, मतलब their refractive index or any other properties, physical properties, if you see there is no difference. Only difference है कि जब light pass होता है उनके through they deviate the light either to left and right. यानी कि in case of SN1 आपने क्या याद रखना है कि SN1 रिएक्शन में पहले कार्बोकैटायन बनता है, सेकेंडली द कार्बोकैटायन बनने के बाद द न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक फ्रॉम द बैक एज वेल एज फ्रॉम द फ्रंट साइड, सो देयर इज अ चांसेस ऑफ फॉर्मिंग racemic mixture. Similarly in SN2 we will quickly revise of SN2. मैंने सपोज यही वाला ले लिया है. in SN2 ये मान लो Cl है और मैंने aqueous OH डाला, तो इसमें क्या होता है, पहले वाले में पहले ये बनता है कार्बोकैटायन, इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें पहले ये जो न्यूक्लियोफाइल है ना ये कम्स एंड अटैक्स और बॉन्ड बनने की कोशिश करता है, तो साइमल्टेनियसली देयर इज अ बॉन्ड ब्रेकेज. यानी कि इफ आई स्टार्ट द रिएक्शन आई विल राइट इट हियर. ओके, सो आई एम स्टार्टिंग विथ OH माइनस. दिस OH माइनस के पास ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि अगर वो पहले ही इसके साथ बाइंड करना चाहेगा तो उसको बैक से ही आना पड़ेगा, क्योंकि अब तो ये Cl टूटा नहीं है. तो इसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इज एन अनस्टेबल स्टेट वेयर देयर इज अ साइमल्टेनियस ब्रेकिंग एंड अ फॉर्मिंग ऑफ OH बॉन्ड. ठीक है, तो यानी कि अगर आप D से स्टार्ट करोगे तो जरूरी ही है कि आपको L मिलेगा उल्टा वाला, बिकॉज इसके पास ऑप्शन ही नहीं है, बिकॉज देयर इज अ साइमल्टेनियस ब्रेकिंग एंड फॉर्मिंग ऑफ अ बॉन्ड. ठीक है, प्लीज याद रखो. और SN2 डिपेंड्स अपॉन बोथ द एल्किल हैलाइड एंड एक्वस KOH. ठीक है, दोनों के इट डिपेंड्स अपॉन बोथ of them, so it is called bimolecular and SN1 is unimolecular. वो सिर्फ डिपेंड करता है अपने एल्किल हैलाइड पे. क्यों? क्योंकि एल्किल हैलाइड कार्बोकैटायन बनता है, तो कार्बोकैटायन किस तरह का बन रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है. पर यहाँ पे क्या है, ये डिपेंड करता है दोनों के ऊपर, क्योंकि देयर इज साइमल्टेनियस फॉर्मेशन एंड ब्रेकिंग ऑफ bond. And here we always undergo inversion. Inversion is must in SN2. Why? Because there is a simultaneous breaking and forming of group, so the incoming group has to come from behind. So अगर आप D से start करोगे तो आपको L मिलना जरूरी ही है, because it is a simultaneous process. अब आ जाएंगे स्टेबिलिटी पे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी. अब मान लो SN1 की तरफ गौर करेंगे. SN1 में क्या बनता है, सबसे पहले बनता है कार्बोकैटायन. ये जो कार्बोकैटायन है, अगर मान लो मैंने टर्शरी, ठीक है, मैंने ले लिया एक टर्शरी, चलो यहीं से बताएंगे हम, टर्शरी एल्किल हैलाइड लिया, तो अगर मैं SN1 कर रही हूँ तो सबसे पहले क्या बनेगा, ये कार्बोकैटायन. और ये जो कार्बोकैटायन है इट इज मोर स्टेबल ड्यू टू पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट. पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट क्यों? क्योंकि मिथाइल इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करेगा और ये जो कार्बोकैटायन है वो ज़्यादा स्टेबल होगा. ये प्लस है ना, इसके पास इलेक्ट्रॉन कम है, बट दीज विल बी गिविंग इलेक्ट्रॉन टू मेक इट स्टेबल. सो सिंस ये ज़्यादा स्टेबल है, कौन, कार्बोकैटायन, देन दिस, तो इसीलिए SN1 इज बेस्ट इन टर्शरी, देन इन सेकेंडरी, देन इन प्राइमरी. ठीक है, क्यों? क्योंकि द कार्बोकैटायन ऑफ टर्शरी इज मोर स्टेबल. क्यों? बिकॉज मिथाइल ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग. अब हम ले लेंगे सेकेंडरी. मान लो यही वाला प्रोसेस हम कर लेते हैं. आई हैव अ टर्शरी क्लोराइड एंड आई वांट टू डू अ SN2. ठीक है, अब SN2 करके देखते हैं. अब SN2 में क्या है, ये निकल रहा है, ये बन रहा है, यानी कि पहले ही बाबा बड़ा बड़ा ग्रुप था, बल्कि ग्रुप, ऊपर से ये निकला भी नहीं है और दूसरा आ गया. सो इन SN2 ये प्रोसेस मतलब कि
why we don't prefer tertiary? We don't prefer tertiary because the groups which are attached to carbon is bulky. ठीक है, because it is bulky there is something called steric hindrance. Due to steric hindrance the process will be better if I take a primary, क्योंकि primary में 3 H group है, so simultaneous breaking and the forming group will not undergo steric hindrance. That's why it will prefer, अगर हम SN2 देखेंगे, प्राइमरी विल बी बेटर देन सेकेंडरी देन टर्शरी. यानी कि मोटी बात आपने ये याद रखना है कि अगर SN1 है, अगर कोई भी दो चीज़ों का कंपैरिजन पूछते हैं कि भाई ये SN1 देगा कि SN2 देगा, SN1 में क्या करना है, पहले ना उसका कार्बोकैटायन बना लेना है. ठीक है, अगर मान लो मेरे को दे दिया इन्होंने एक, ये कौन सा हो गया, विनाइल क्लोराइड. ठीक है, विनाइल क्लोराइड कौन, जिस कार्बन ने डबल बॉन्ड भी पकड़ा है और सिंगल बॉन्ड क्लोरीन भी, हैलाइड भी पकड़ा है, और मैंने एक एलाइल ले लिया. एलाइल हैलाइड, दिस इज विनाइल, दिस इज एलाइल. ठीक है, मैंने एलाइल ले लिया. अब दोनों का मुझे पता करना है कि भाई SN1 कौन ज़्यादा अच्छा देगा, तो इसको मैंने कर दिया कार्बोकैटायन, इसको भी बना दिया. भाई ऐसा है, SN1 बोलते ही बंदे की ना कार्बोकैटायन बना लो आप. ठीक है, सो अब कार्बोकैटायन अब देखो किसकी स्टेबल है, तो इसमें तो कोई रेजोनेंस दिख ही नहीं रहा, मैंने तो रेजोनेंस कर ही नहीं सकती. सॉरी, देयर वुड हैव बीन 1 H. सो इसमें ज़रूर हो सकता है कि इट गोज हियर एंड आई गेट अ रेजोनेंस स्ट्रक्चर. यानी कि SN1 में भाई जो कार्बोकैटायन है अगर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है तो वो SN1 फॉलो करेगा. उसी तरह बेंजाइल क्लोराइड ले लेंगे हम, ये हो गया बेंजाइल क्लोराइड, इसकी अगर हम कार्बोकैटायन बनाते हैं तो ये भी अंडरगो करेगा रेजोनेंस. ठीक है, सो बेंजाइल क्लोराइड विल ऑल्सो अंडरगो SN1. तो ये इसने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे दिया तो यहाँ हो गया प्लस. ठीक है, सो ये आपको याद रखना है. और दूसरा आ गया है एलिमिनेशन रिएक्शन. बहुत अच्छे से याद रखिए. आई विल नॉट टॉक मच अबाउट इट बिकॉज यू कैन रिवाइज फ्रॉम द प्रीवियस वीडियो. जब मैं किसी भी एल्किल हैलाइड के साथ अगर मैं एक्वस KOH करती हूं, यही बात आपने याद रखना है, तो अल्कोहल बनेगा. बट अगर मैंने वही एल्किल हैलाइड के साथ अल्कोहलिक KOH डाला तो इट विल फॉर्म alkene. It will undergo dehydrohalogenation. It will undergo because it is a stronger base. Then it will take elimination reaction. यानी कि H भी निकलेगा और Cl भी निकलेगा and there will be forming of a double bond. This is elimination reaction. ठीक है, so ये आपको याद रखना है. And then quickly we will talk about chlorobenzene. तो क्लोरोबेंजीन जो है इसकी जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, हमेशा याद रखना इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस आर लाइक नाइट्रेशन. और व्हाट इज अ नाइट्रेटिंग एजेंट, HNO3 H2SO4. यानी कि जब भी आपको NO2 ग्रुप घुसाना है, okay, when you want to put a NO2 group in ortho and para, then you have to use this HNO3 plus H2SO4. Similarly, if you want to introduce a CH3 group, तो आपने क्या करना है, Friedel-Crafts, you have to do Friedel-Crafts reaction. Similarly, अगर COCH3 करना है तो acetylation, Friedel-Crafts acetylation reaction which happens in presence of AlCl3. तो ये मैं करूँगी in presence of AlCl3. ये कौन सा हम कर रहे हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या क्या है, सल्फोनेशन जो H2SO4 के प्रेजेंस में होता है, नाइट्रेशन जब मैंने NO2 घुसाना है, जब मैंने CH3 घुसाना है, Friedel-Crafts एसिटाइलेशन और Friedel-Crafts अल्काइलेशन. यानी कि Cl तो रहेगा ही, CH3 ऑर्थो और पैरा में आ जाएगा. सॉरी, इट विल कम इन पैरा. और वही चीज अगर मैंने CH3COCl के साथ किया in presence of same AlCl3, then I will say acetyl
hydroglycerylation. This is all about electrophilic substitution. If I do, you can stop the videos in between and understand it better. I am just quickly doing it because it's just a recap of it. Now न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैठता है. मैंने अभी फिर बताया था आपको न्यूक्लियोफाइल में क्या करना है. मुझे ये Cl को हटा के मुझे कोई ग्रुप लाना है. सो सपोज आई ट्रीटेड विथ NaOH. ठीक है, इफ आई ट्रीटेड सो आई शुड गेट OH. ठीक है, बट द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, प्लीज याद रखें, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ क्लोरोबेंजीन इज लेसर बिकॉज ऑफ रेजोनेंस. हमें क्या करना है, Cl हटाना है, बट Cl हम हटा इसलिए नहीं पाते क्योंकि रेजोनेंस के वजह से इसको एक डबल बॉन्ड कैरेक्टर मिल जाता है, तो Cl निकालना मुश्किल हो जाता है. दूसरी बात, दिस CCl बॉन्ड इज sp2. when it is sp2, it will pull the electron and the bond will be stronger because this carbon is more electronegative. So if I want the nucleophilic substitution, then I have to apply a higher temperature, that is 300 atm pressure and 623 Kelvin. So this is all about the properties. I have just quickly wind up with the properties. Please go through these two videos first and then I will put you can start with alcohols and phenols. It's a quick recap of what we have done in the previous chapter. Thank you.